Hello dear students, today I am going to continue chapter 10 of economics, standard 11 commerce, session number 3 of budget. In last two sessions of this particular chapter budget, I started and gave the information of the introductory part. With the help of the planning commission, Niti Aayog, that was the transforming India related things, right? Also the constitution of India who assigned, that means constitution assigned the power a three-tier government, that is tier including central government, state government and the local government. For example, municipality, I gave that example. Also as per that, subject to have the regional importance to the physical and social environments of our country. Different states have the different type of the work, different type of the facilities they are providing, so for that expenditures are required, and that is the reason why they are making some of the expenditure and fulfill that different type of the needs of the society. So it was the first and second type of the first and second introductory part of our session. Now in this session I will start and give the information related to the meaning of budget. This particular important point is very important not only for the studies but also in future, because every year the budget is presented by the central government, right? Somehow not only for the central but also state government, also local level municipalities are also preparing this type of the budget, right? So let's start with the meaning of budget. Budget क्या है? A government budget is an annual. The word is used government because whatever we are preparing, that is only the budget related to the our house, तो उसको हम बजट बोल सकते हैं. लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगा तो पूरी कंट्री के लिए. That's why a government budget is an annual accounting statement. See here, account is also there. That means that here we have to looking after different type of the accounting related information. So it is an annual accounting statement. वो एक स्टेटमेंट है, यानी इंफॉर्मेशन एक्सपेंडिचर और इनकम का आएगा ही आएगा. कीप इन माइंड, whenever the particular account is there, there must be income and expenses, right? Keep in mind this point. So an annual accounting statement of the item wise estimate. See the another word, item wise estimate. So one by one every type of the item which is there in our country throughout the year, used by the public, used by the citizens of our country, whatever the making of their expenses, whatever the incomes are there, everything is included, right? So statement of the item wise estimates of expected revenue. See, expected revenue, the revenue is not fixed, we have to just looking after the expectation of the revenue from where we can earn, that means country can earn, and anticipated expenditure, that will be also we can say some of the expectation of the expenditures are there. So somehow income and expenditures are well in advance expected on the basis of items, that is the item wise estimates of the government for a new fiscal year, you can say for the new financial year for the country. Once again, government budget is an annual accounting statement of the item wise estimates of the expected revenue and anticipated expenditure of the government for new fiscal year. So that is a simple thing. Government एक budget बनाएगी, पूरा annual account जो उसमें हम डालते हैं, you will learn everything should be means everything will be there in your later on syllabus of the accountancy, but keep in mind an annual accounting statement of the item wise estimated of the expected revenue and expected or anticipated expenditure of so and so government for a fiscal year. तीन बार इसलिए समझाया कि keep in mind the particular information with you, right? So that is the important thing. So government एक budget बनाएगी, वो एक statement होगा, उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक्सपेक्टेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ आइटम, और उसको कहलाएंगे हम कहेंगे गवर्नमेंट फिस्कल ईयर के हिसाब से 1 ईयर का बजट. लेट्स स्टार्ट विद द मेन एलिमेंट्स ऑफ द बजट. ओनली द लिस्ट इज देयर, सो जस्ट रिमेंबर वन बाय वन द स्टेटमेंट टाइप लिस्ट विच आर द सम ऑफ द कंपोनेंट्स, राइट, और वी कैन से एलिमेंट्स आर देयर ऑफ द बजट. बजट में क्या होगा? फर्स्ट वन, इट इज़ अ स्टेटमेंट. सो जो हमने यहाँ डिस्कस किया, जो मैंने आपको ये मीनिंग में बताया, वही यहाँ पर लाइन बाय लाइन आपको वन बाय वन समझाया गया है. देख लेते हैं. इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ गवर्नमेंट रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर्स. सिंपल थिंग इज हियर कि एक हम स्टेटमेंट बनाएंगे, गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट बनाएगी, उसमें गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से पैसे कमाएगी,
कहाँ से उनका रिसिप्ट होगा और कहाँ वो पैसे को स्पेंड करेगी एक्सपेंडिचर। तो जब ये बजट आएगा ना, अब तो आपके पास आ गया है, पूरा डिटेल आ जाएगा, ये चैप्टर खत्म होगा तब तक आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन होगा और बजट विल बी देयर इन जनवरी एंड और फरवरी फर्स्ट वीक। तो आपके पास पूरा एक बेस तैयार है, तब आपको मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली बजट क्या है, गवर्नमेंट कहाँ पैसे खर्च कर रही है, कहाँ से पैसे अर्न कर रही है, वो एक स्टेटमेंट बनाएगी। सेकंड वन, बजट एस्टिमेट्स pertain to a fixed period, generally a year. Mostly all over the world, budgets are there or estimations are there for the different type of the income and expenditure for the 1 year. उससे ज़्यादा हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते और उससे ज़्यादा हम शायद प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकते ईयर से ज़्यादा। ये भी बहुत है, एक साल का भी बहुत है, क्योंकि विद इन द 1 year हमने कोविड-19 को शायद फेस किया, तो आपको मालूम है कि कैसे बजट पूरा स्मैश हो गया है। सो ये डिफरेंट थिंग है कि एवरी ईयर सेम नहीं होता है, लेकिन हाँ ईयर भी ज़्यादा है। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट ऑफ एनी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट ले लो, लोकल लेवल से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक, राइट, एनी गवर्नमेंट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन एंड पब्लिक वेलफेयर। तो ना कि गवर्नमेंट को सिर्फ अर्न करना है, ना कि उनको सिर्फ स्पेंड करना है, लेकिन गवर्नमेंट को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है कोई कंट्री का, दैट इज द मेन थिंग, कोई एक रीजन का, राइट, कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्रीय, राइट, हम उसको बोलते हैं एक रीजन या जोन या फिर एक तालुका बोल दो, एक छोटा सा गांव बोल दो, तो सबके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो उनका बजट है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एज वेल एज पब्लिक वेलफेयर। हाउ दे विल मेक द डिफरेंट ऑफ द चेंजेस विदाउट परमिशन ऑफ द पब्लिक। तो पब्लिक को पूछते नहीं है, लेकिन पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होता है इनडायरेक्टली, राइट। तो पब्लिक वेलफेयर के लिए तो पब्लिक को रखना ही पड़ेगा। सो पब्लिक वेलफेयर विल बी देयर, क्योंकि हमारे लिए, राइट, सिटीजन्स के लिए भी कुछ ना कुछ होगा। मीन्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फॉर सिटीजन्स, तो वो पब्लिक वेलफेयर भी होना चाहिए। फोर्थ वन, it is required, this particular budget is required to be approved or passed। वैसे ही बजट को हम अप्रूव नहीं कर सकते, यानी कि गवर्नमेंट जो भी है, रूलिंग पार्टी है, अभी जो रूलिंग पार्टी है हमारे कंट्री में, वो सीधे ही बजट को अप्रूवल नहीं देती है, राइट। तो इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड और पास्ड बाय लोकसभा। लोकसभा में उनका मेजोरिटी है तो आराम से पास हो जाएगा, और उसके बाद अगर लोकसभा में आ गया है, असेंबली होगी, राइट, लेजिस्लेटिव असेंबली, और सम सच पब्लिक बॉडी बिफोर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो लोकल लेवल पर भी कई लोग होंगे, राइट, अपोजिशंस होंगी, रूलिंग पार्टी है तो रूलिंग पार्टी का अपोजिशन होगा, तो उनका भी जो भी उसमें इन्वॉल्वमेंट करते हैं सबका अप्रूवल चाहिए, राइट। अगर मेजोरिटी है तो फिर बाय डिफॉल्ट आपको अप्रूवल मिल ही जाएगा, मेजोरिटी नहीं है तो यू विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम, राइट। सो इजीली हमारी कंट्री में अब तो हो ही रहा है, तो पब्लिक बॉडी भी है तो उनके बिफोर ये इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए लाना पड़ेगा, पुट इनटू प्रैक्टिस। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, यूजुअली अ बजट इज डिक्लेयर बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो बजट को प्रेजेंट करते। अभी हमारी कंट्री में जो भी बजट आते हैं मोस्टली कई सालों से फाइनेंस मिनिस्टर ही उसको प्रेजेंट करते हैं, राइट। इन सालों में 5-7 सालों में फाइनेंस मिनिस्टर 2-3 बार चेंज भी हुए, राइट, आपको मालूम भी है क्या नाम है, तो वो याद रखने की ज़रूरत इसलिए कि जब ये फरवरी 2021 में जब बजट आएगा तभी उनके थ्रू ही वो बजट डिक्लेयर होगा। सो द फाइनेंस मिनिस्टर यूजुअली, ये शायद आपके एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है कि कौन बजट प्रेजेंट करता है, ये है नेशनल लेवल के लिए, राइट। वैसे ही स्टेट लेवल पर होते हैं, और अगर कई जगह ऐसा कोई सामान्य, फॉर एग्जांपल म्यूनसिपालिटी लोकल लेवल पर होते हैं तो हेड ऑफ गवर्निंग बॉडी जो होते हैं वो ये डिफरेंट टाइप ऑफ दी जो एक साल का बजट होता है वो प्रेजेंट करते हैं, दैट इज द थिंग। तो यूजुअली बजट इज डिक्लेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, राइट, ऑफ अ कंट्री, स्टेट और द हेड ऑफ द गवर्निंग बॉडी। सो दैट्स द इंफॉर्मेशन रिलेटेड द मीनिंग एंड मेन एलिमेंट्स ऑफ द बजट। तो कीप इन माइंड इट्स अ स्टेटमेंट, राइट। बजट एक स्टेटमेंट है और वो एक एक्सपेक्टेशन है। इट इज़ नॉट 101% श्योर, नॉट 100% श्योर, नॉट 99% श्योर, नॉट 50% श्योर, नॉट 1% श्योर, 1% भी इसमें श्योरिटी नहीं है। कीप इन माइंड ये एक एक्सपेक्टेशन है। हाँ, शायद हमारा एक्सपेक्टेशन सही होगा तो 100% वही खर्च होगा जो बजट में दिया है, 100% वही इनकम होगा जो बजट में दी है, लेकिन you know the future and future is uncertain. You know the future means you know the future is uncertain. So keep in mind that thing, budget एक expectation है income और expenditure का। Next one, after this one, the particular point that is purpose of budget. Budget का objectives क्या है, उसके purposes क्या है, we can say goals, right? Budget क्यों बनाना होता है? So simple, government must plan its expenditures and rates its income in such a way that the following objectives are fulfilled. तो हमारी कंट्री एक
ऐसी डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पहले हम खर्चे नक्की करते हैं, एक्सपेंडिचर्स डिसाइड करते हैं, और उसके बाद इनकम कहाँ से जनरेट करेंगे वो देखते हैं। हमें उसके टाइप्स देखेंगे नेक्स्ट सेशन में या उसके बाद के सेशन में, तो आपको बताऊंगा कि बाहर की कंट्रीज जो होती है अब्रॉड में, वो पहले इनकम जनरेट करती है, उसके बाद एक्सपेंसेस डिसाइड करती है। दैट्स व्हाई दे आर डेवलप्ड। डेवलपिंग डेवलपमेंट का भाई यही तो फ़र्क है। तो हमारी कंट्री क्या करती है, मस्ट प्लान इट्स एक्सपेंडिचर्स एंड रेज इट्स इनकम, उसके बाद इनकम रेज करती है, तो इनकम बढ़ेगी तभी एक्सपेंडिचर आप कर सकोगे। लेकिन हमारी कंट्री में पहले एक्सपेंडिचर डिसाइड होते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट वेज आर दैट वी हैव टू फॉलो एंड वी हैव टू fulfill all the objectives one by one. I will start and give the information of that one. Let's start with the first one. To obtain approval of the body by elected representatives. हमने ही चुना है, इन लोगों को पब्लिक ने ही चुना है, और उनसे ही हमें इलेक्शन के तौर पर जो जिनको चुना है वो रिप्रेजेंटेटिव्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ बॉडी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो उनके अधिकारी होते हैं, जो उनके प्रतिनिधि होते हैं, इलेक्टेड प्रतिनिधि जिसको हम बोलते हैं बॉडी के, उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा। सी द रूलिंग गवर्नमेंट रिक्वायर्स एन अप्रूवल ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट। जो रूलिंग पार्टी है, अभी की जो रूलिंग पार्टी है नेशनल लेवल पर, राइट, तो उनको क्या करना पड़ेगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ एनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कोई भी ले लो, दुनिया की कोई भी डेमोक्रेसी है, वहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं रूलिंग पार्टी के, उनके हिसाब से उनका अप्रूवल लेना पड़ता है और दे भी दिया जाता है, राइट, रूलिंग पार्टी के जो भी होते हैं, राइट। फॉर द एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम एस्टिमेटेड टू बी इनकर्ड इन द एंश्यूइंग फाइनेंशियल ईयर, तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी काम करना है, उसके लिए जो भी एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम्स है, वी हैव टू फुलफिल दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव एज अ पार्ट ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट। सो दे विल completely approve the income and expenditure statement easily, because see they are the part of the government, they are the part of the democracy, right? तो गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी इनकम एक्सपेंडिचर जनरेट होने वाले उनको वो अप्रूव 101% देंगे, दैट इज अ थिंग। सो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वन, टू get an idea regarding available resources and areas requiring expenses. You know this available resources, कंट्री में आप रहते हो, आपको मालूम है कितने कितने नेचुरल रिसोर्सेज है, किसने अनयूज्ड है, किसने अनटैप्ड है, किसको हमें ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, वो गवर्नमेंट को सब मालूम होता है। एंड ऑल्सो सम ऑफ द एरियाज रिक्वायरिंग एक्सपेंसेस, कई एरियाज होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसेस करोगे तो आपको वहाँ से आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। रेलवेज है, नए नए प्रोजेक्ट आएंगे तो उस फील्ड में डालो। अभी के लिए देखो तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, उसमें पैसा डालो, यू विल रिसीव द मनी, राइट, विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड। सो गवर्नमेंट उसमें ही पैसा डालेगी, उसमें ही एक्सपेंस करेगी, वहाँ से जिसको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। लेट्स सी हाउ टू गेट एन आइडिया रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ विच द गवर्नमेंट कैन एंड शुड अंडरटेक, जो गवर्नमेंट कर सकती है और करेगी। एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड इन वेरियस सेक्टर्स एंड सोर्सेज फ्रॉम वेयर द नेसेसरी इनकम में बी रेस्ड। मैंने आपको बोला वही, राइट, कि वेन एवर दिस टाइप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द एक्सपेंसेस आर डन, सो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के हिसाब से एक्सपेंसेस करेगी एंड दे विल एक्सपेंड द मनी ऑन दैट टाइप ऑफ द सेक्टर्स, ऑन दैट टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड ऑन दैट टाइप ऑफ द सेक्टर्स वेयर दे कैन ईजिली गेट द मोर एंड मोर इनकम। सो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट होगी तभी वो एक्सपेंड कर सकेंगे ना, राइट। सो गवर्नमेंट mostly expenses to be incurred in various sectors and sources, right, that is from the necessary income will be raised or generated. तो गवर्नमेंट किस में पैसा डालेगी, प्राइवेट सेक्टर में। यस, 101% दे विल गिव द मनी टू द प्राइवेट सेक्टर एंड इंक्रीज देयर इनकम। तभी तो प्राइवेट सेक्टर के लिए अभी डोर्स ओपन हो गए, है। रेलवेज को कहीं ना कहीं तरह प्राइवेटाइजेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। कई ऐसे फील्ड है, कई ऐसी जगह पर है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट हो सके, तभी गवर्नमेंट हमको बेस्ट सर्विसेज दे सकेगी। दैट इज़ अ थिंग, उनके हिसाब से देखते हैं। लेकिन अप्रूवल है, उसके बाद रिसोर्सेज का यूज़ होना चाहिए और एक्सपेंसेस जो करने हैं उनके सामने इनकम जनरेट होनी चाहिए। थर्ड वन, कंटिन्यू है हमारा पर्पस ऑफ बजट। थर्ड वन है प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज तो इतने बड़े हैं और इतने ज़्यादा है, तो सिंपल थिंग इसके यहाँ पर आपको उनको डायरेक्शन देना पड़ेगा, जो भी रिसोर्सेज है उसको एलोकेट करने के लिए। स्टैंडर्ड 10 में आप सीख गए हो, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हमने देखा था कि रिसोर्सेज कैसे एलो होते हैं, राइट, एसएस में। लेकिन यहाँ आप सोचो, यहाँ थोड़ा ब्रॉड फेज से हम देखेंगे कि व्हेनेवर दिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आर डन, समटाइम्स सम ऑफ द रिसोर्सेज आर गिवन टू दोज टाइप ऑफ द एरियाज, दोज टाइप ऑफ द कंपनीज एंड दोज टाइप ऑफ द सेक्टर्स के दे विल गेट मोर एंड मोर यूज ऑफ दैट वन। सो कई लोगों को ज़्यादा फायदा होता है, कई लोगों को कम। हाउ, लेट्स सी।
टू गिव डायरेक्शन टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज दैट इज कलेक्टेड इनकम। अब जिसको आप एलोकेट करते हो रिसोर्सेज वहाँ से इनकम जनरेट होगा ही होगा, राइट। सो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन डिफरेंट सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी एंड नीड। तो प्रायोरिटी के हिसाब से आपको उसका एलोकेशन देना है। कंपनीज ऐसी होती है जो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कुछ ना कुछ तरीके अपनाती है। सो यू हैव टू एज अ गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट की ओर से बोल रहे हैं कि टू गिव अ डायरेक्शन टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और कलेक्टेड इनकम इन डिफरेंट सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। तो जिसकी बेसिक नीड्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा झुकाव होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का एलोकेशन मिलेगा, और जिसकी नीड ज़्यादा है उसके हिसाब से इसको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ एक ग्रुप का ध्यान रखना है, ऐसा भी नहीं है हमको कोई एक रिच पीपल को, या हमको ऐसा भी नहीं है कि कुछ ऐसे लोग हैं कंट्री में जिसको ज़्यादा इनकम जनरेट करने में इंडिया जनरेट करने में शायद हम बोल सकते हैं कि कदाच एवा લોકો છે કે જેમને વધારે ને વધારે નફો કમાવો છે, वी कैन से दैट थिंग, right? So government is giving that type of the projects to them, those who will get more and more profit and give the services to the people. So doesn't matter, profit कमाओ सर्विस दो, लेकिन हाईएस्ट सर्विसेज एट द लोएस्ट प्राइजेस वो होना चाहिए, तो प्रायोरिटी उसको ही मिलनी चाहिए। द थिंग इज दैट, सो सिंपल थिंग वंस अगेन डिफरेंट सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी एंड नीड, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। अनदर थिंग, विदाउट प्रिपेयरिंग प्रॉपर एस्टिमेट्स, इफ गवर्नमेंट इज नॉट प्रिपेयरिंग एनी एस्टिमेट्स, हमने कुछ एस्टिमेशन बनाया नहीं है, किया नहीं है गवर्नमेंट ने, तो सम सेक्टर्स विल रिसीव मोर फंड्स एंड सम सेक्टर्स और सम अदर्स मे बी नेग्लेक्टेड। सो किसी को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा और किसी फील्ड को कुछ भी नहीं मिलेगा, उसको ध्यान पे ही नहीं लिया जाएगा, उसको नेग्लेक्ट किया जाएगा। दैट्स नॉट गुड। सो हमें ऐसा ध्यान रखना है कि प्रॉपर एस्टिमेट्स बना के सबको सही तरीके से सही मायने में पैसे मिलने चाहिए, है सब सेक्टर को। अब ऐसा तो है नहीं कि आयरन एंड स्टील सेक्टर ज़्यादा पैसा लेगी और फर्टिलाइज़र को नहीं मिलेगा, बिकॉज वी आर इन दी पर्टिकुलर कंट्री वेयर एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन दी अदर सेक्टर्स। तो सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को, कृषि विभाग को आप कुछ नहीं देंगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को देंगे तो अपोज तो होगा ही। सो ये सब चीज़ें हैं, उसको ध्यान पर रखनी है, लेकिन प्रायोरिटी और नीड के हिसाब से सबको पैसा मिलेगा और प्रायोरिटी और नीड के हिसाब से उसको एक्सपेंस के हिसाब से काम किया जाएगा। सो कोई भी नेगलेक्ट नहीं होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा सबको बेनिफिट हो सके। फोर्थ एंड लास्ट वन, फॉर नॉलेज ऑफ द पब्लिक। अब पब्लिक में हम आप हैं, आप तो कॉमर्स स्टूडेंट्स हो, हम तो कॉमर्स टीचर है। कीप इन माई द थिंग, मैं यहाँ इसलिए यह वर्ड बोल रहा हूँ कि वी आर टेकिंग द पर्टिकुलर बेनिफिट्स ऑफ द अवर फील्ड। हमें सब कुछ मालूम है फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। कॉमन पब्लिक, कॉमन पीपल जिसके पास नॉलेज ही नहीं है, वो सिर्फ ऐसा देखेगा न्यूज़पेपर में कहाँ से पैसा आया कहाँ पैसा गया, राइट, कहाँ से आया कहाँ का, उनको बेसिक नॉलेज नहीं है कि बजट क्या है, कैसे प्रिपेयर होता है। सो फॉर नॉलेज ऑफ द पब्लिक ये इंपॉर्टेंट थिंग है। व्हेन बजट इज प्रेजेंटेड पीपल कम टू नो ऑफ द कमोडिटीज विच विल बिकम चीपर owing to the government's increased allocation in those sectors and commodities which will become a dearer owing to increased tax burden in those sectors। तो यहाँ सिंपल थिंग है, cheaper and dearer, સસ્તા મહેંગા। ये dearer means महंगा, मोंगू જેને આપણે કહીએ છીએ, दैट कीप इन माइंड द थिंग। सो नॉलेज पब्लिक के लिए क्या है कि उनको जब बजट मिलता है, उनके हाथ में जब इंफॉर्मेशन आती है तो उनको मालूम होना चाहिए कौन सी कमोडिटी सस्ती हुई है, चीपर हुई है, ओइंग टू द गवर्नमेंट्स इंक्रीज एलोकेशन। गवर्नमेंट के ने जिन जिन एलोकेशन में जिन जिन पर्टिकुलरली सेक्टर्स में पैसा डाला है उनमें से कौन सी चीज़ सस्ती हुई है, राइट, वो सेक्टर्स देखना है। और गवर्नमेंट किस किस कमोडिटीज़ में डाला है पैसा, जहाँ चीज़ें महंगी हुई है, चीज़ें महंगी होंगी तो बाय डिफ़ॉल्ट द टैक्स बर्डन विल इंक्रीज इन दोज सेक्टर्स। अब इनका टैक्स बर्डन, उनका टैक्स बर्डन बढ़ेगा तो नेचुरली वी हैव टू पे मोर प्राइजेस, है। तो सिंपल थिंग, द पीपल कम टू नो ऑफ कमोडिटीज़ विच विल चीपर एंड विच विल डियरर। So increase decrease prices will be there on the basis of the cheaper and dearer type of the commodities। अगर आप यहाँ इस हिसाब से देखोगे प्रायोरिटी जिसको दी गई है नीड के हिसाब से, तो मे भी वो ज़्यादा से ज़्यादा कई लोगों के हाथ में चीपर वे में आएगा। लेकिन अगर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से कम एलोकेशन से किया हुआ है, अगर रिसोर्सेज कम है हमारे पास एंड वी आर गिविंग दैट रिसोर्सेज इन अ डिफरेंट फील्ड, राइट, तो फिर जो भी हमारे टोटल रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज का यूज़ होगा और यू विल गेट द बेनिफिट। बट रिसोर्सेज कम है, डिमांड ज़्यादा है, प्राइस विल इंक्रीज।
तो इट विल बिकम डियरर ओइंग टू इंक्रीज टैक्स बर्डन इन दैट सेक्टर। तो गवर्नमेंट के हिसाब से होता है और चलता रहता है। सो सिंपल थिंग, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग दैट टाइप ऑफ द फैसिलिटीज, तो नॉलेज रखना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट वन, थस इन अ वे बजट इज एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ प्लानिंग बाय द गवर्नमेंट। सो एक गवर्नमेंट का एक एलिमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। आपके पास बेसिक नॉलेज आ गया, धीरे धीरे हम उसके टाइप देखेंगे, धीरे धीरे हम उसके लिए इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो आपको मालूम हुआ बजट एक्चुअली क्या होता है। एंड आफ्टर वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट आर और दिस आर गाइडेड बाय द बजट एलोकेशंस इन कंसर्न सेक्टर। तो कितना पैसा कहाँ जाता है वो बजट के थ्रू ही डिसाइड होगा। अगर आपको शायद थोड़ा बहुत नॉलेज पहले से ही होगा, तो ये टीम अभी काम कर रही है, राइट। पिछले 3-4 महीनों से इसके पीछे काम चल ही रहा है। शायद मैं तो बोलूँ अप्रैल या मई से, अप्रैल 2020 से, कोविड-19 की वजह से शायद काम थोड़ा लेट शुरू होगा, लेकिन अप्रैल 2020 टू मई 2020 से बीच से ही काम शुरू हो जाता है। नेक्स्ट फरवरी का काम पहले से एडवांस में 9 महीने पहले ही हो जाता है। सो दैट इज अ थिंग कि पूरे साल टीम काम कर रही है, एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, जो भी बजट हो गए उसके पर्पजेस ऑब्जेक्टिव 101% फुलफिल हो गए। सो कीप इन माइंड द थिंग, budget is a statement of the income and expenditures. That is one type of the expectations, right? That is only on the basis of the accounting statement. Anticipated expenditure, anticipated or expected revenues are there, and उसके purpose से हमको उसको fulfill करना। So that's the end of our session. Next time, in next session, I will start the types of budget. और बजट के जो टाइप है, राइट, वो हमारी कंट्री के हिसाब से देखें तो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड है, और अनबैलेंस्ड में हम जाएंगे डेफिसिट और सरप्लस में। उसके बाद उसके कई मेरिट्स डिमेरिट्स है दोनों बजट के, वो भी देखेंगे। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दी आवर पर्टिकुलर बजट। और जीएसटी का भी थोड़ा पोर्शन है, ऑलरेडी अकाउंट्स में आप सीख चुके होंगे, यहाँ थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, वो भी हम लेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द GST on the different type of the codes, that is CGST, SGST and UT GST with the help of the IGST. So thank you very much.